Good evening all. Good evening. Started शुरू हो क्या लग रहा है? This is the sign of a Gujarati Kunala. Anyways, so welcome everybody to 30th year celebration અમારી કંપનીનું જે છે આજે એની માટે અમે લોકો આજે આ પેનલ ડિસ્કશન ફોર્મેટનું આયોજન કર્યું છે જેમાં we'll be discussing with all these dignitaries about stock market ને માર્કેટની ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું અને જેથી તમને બી ગાઈડન્સ આવે કે કેવી રીતે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં શું કરવું જોઈએ એની પર બધું ડિસ્કશન્સ કરીશું. વેલકમ ટુ ઓલ ધ પેનલિસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર કમિંગ ડાઉન ફોર અવર thing. I'll keep it in Hindi and Gujarati. You guys can continue in Gujarati, or these two will continue in Hindi. So, as everybody said, हम लोग गुजरात में है. सबसे बड़ा गुजरात में आई थिंक हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्केट में गुजराती का रहता है. तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन हर गुजराती का एक ही आएगा, मार्केट क्या लगता है सर? मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन. First of all, I would really say we are at the juncture where corporate balance sheet is in peak of health. We have never seen such a strong corporate balance sheet in the last 20 years or even more. So, the market is inherently very, very strong actually, right? Second part, I would really say that in the earnings momentum is still very solid. Okay, and the leg which was missing was the rural consumption. I think the green shoot of recovery we are seeing. So, market is, in my view, is slightly overvalued as compared to the long term to the range of 5 to 7%. So, some moderation can happen, but we are seeing, GDP growth rate has a very long-term growth prospects. So buy any correction for very long-term growth, and I really see there is a decadal opportunity for wealth creation because India's demographic and lower interest cost will help us to achieve our aim for wealth creation journey for the next decade. માર્કેટ તો સારું લાગે છે. ઇનફેક્ટ મને એવું લાગે છે કે જેટલું લોકો કહે છે કે ભાઈ બહુ ચાલી ગયું, બહુ અધિક થઈ ગયું, બહુ થઈ ગયું, જેટલું લોકો કહે છે એટલું નથી બનતું. અને માર્કેટમાં તમે ક્યારે બી જુઓ ને તો માર્કેટનો કોઈક ભાગ, એટલે તમે ગોતવા નીકળો તો માર્કેટના કોઈક ભાગમાં બબલ હશે જ, અને ગોતવા નીકળો તો માર્કેટનો કોઈક ભાગ સસ્તો મળશે. એટલે હવે જે ચીજ બહુ ચાલી ગઈ અને જે ચીજ મોંઘી થઈ ગઈ એમાંથી નીકળો અને જે ચીજ રિલેટિવલી એટ્રેક્ટિવ લાગે છે એમાં તમે જાઓ. એટલે તમે જો છેલ્લા 3 થી 6 મહિનામાં માર્કેટમાં ઓલરેડી એક જાતનું રોટેશન દેખાય છે આપણને. છેલ્લા મહિના 2 મહિનામાં તમે જો આઈટી, ફાર્માસ્યુટિકલ, કેમિકલ તો 3-6 મહિનાથી ચાલે છે. પછી તમે જો વચ્ચે કન્ઝ્યુમર કંપનીઝ, એની પહેલાં તમે હવે પાછલા વર્ષે તમે જુઓ તો બધું ઓઇલ, મેટલ, કમોડિટી, પીએસયુ, મેટલ એવું બધું ચાલતું. હવે તમે જુઓ તો બીજું નહીં ચાલે. એટલે માર્કેટમાં સતત એવું થતું હોય છે કે ભાઈ કંઈક ચીજ મોંઘી થઈ જાય એટલે પછી આપણે એમાંથી નીકળીને જોવું પડે કે ભાઈ શું હવે એટ્રેક્ટિવ લાગે છે. એટલે લાંબા ગાળામાં માર્કેટથી જોડાઈ રહ્યો અને જો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તમે વિચારતા હો એના કરતાં વધુ રિટર્ન બની ગયા હોય તો જે મોંઘું થઈ ગયું એ નીકળીને બીજું કંઈ લ્યો, રાઈટ. એટલે માર્કેટ તો સારું જ લાગે છે. અને પહેલાં બી જેમ મેં કીધું કે જેટલું લોકો કહે છે એટલું ચાલુ નથી. અને મેં સવારે બી તમને કીધું કે ટીવી જો મ્યુટ પર જોતા હોય તો મ્યુટ પર જ રાખો, બહુ સાંભળવાની જરૂર નથી. આપણને સાંભળો. So, first of all, thanks a lot for having us. And broadly, equity markets ने सारू करवा माटे मारा हिसाबे 3 E are very important. The first E is economy, and which Gopalji also said, economy is very well placed today. In last 20 years also, as a country, we have grown in a very rapid way. In next 10 years also, we are very well placed from that angle. So, આવનારા 10 વર્ષ માટે economy activities are looking very strong. सबसे पहले तो जेपी सिक्योरिटीज को बहुत बहुत बधाई 30 इयर्स कंप्लीट करने के लिए. एज पर वन एस्टिमेट जितने भी अभी एग्जिस्टिंग एक्टिव फंड मैनेजर्स और इंटरमीडिएट्स हैं उसमें लेस देन 1% है जिनकी लाइफ मोर देन 25 इयर्स है.
JK Securities is one of them. So आप उस 1% के ब्रैकेट में हो 25 years ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्या हम लोग जिस बिजनेस में है ना ये बिजनेस इज मोर अबाउट ट्रस्ट देन अबाउट नॉलेज देन अबाउट रिलेशनशिप देन अबाउट प्रोडक्ट. ट्रस्ट इज ऑलवेज द इंट्रीगेट. और आप इतने साल तक यदि आप सर्वाइव करते हो और लगातार ग्रो कर रहे हो और जो सबसे प्यारी बात है मैं JK सिक्योरिटीज में खास करके देखता हूँ जो क्लाइंट के प्रति आपका जो कमिटमेंट है जो विश्वास है आप लोग का दैट इज डेफिनेटली वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो आपको सबको बहुत पूरी टीम को बहुत बधाई. और सेकंड आपका जो क्वेश्चन है मार्केट क्या लगता है ये शायद क्वेश्चन उतना ही पुराना है जितना पुराना स्टॉक मार्केट का लाइफ रहा होगा. और शायद आप भी 30 साल पार किए होंगे तो आपको शायद हर दिन ये क्वेश्चन तो हमेशा रहा है. सदाबहार क्वेश्चन है मार्केट क्या लगता है. किंतु एक अच्छा एंगेजमेंट का भी टॉपिक है. यदि बोलते हैं ना कि भाई 4 यार मिल जाए और साथ में दारू हो और मार्केट क्या लगता का टॉपिक हो तो टाइम भी अच्छा पास होगा रेस्टोरेंट मालिक का भी चलेगा बहुत अच्छा. किंतु सही मायने में देखा जाए इस टॉपिक का इज नो सिग्निफिकेंस. ये जस्ट एक जुमला है मस्ती की चीज़ है टाइम पार है क्योंकि इसका अल्टीमेट बेनिफिट सब लोग मार्केट क्या लगता है में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. किंतु हम यदि डेटा देखेंगे ना लास्ट 20 ईयर्स में जितना परफॉर्मेंस मार्केट ने किया है उसके लगभग परफॉर्मेंस फंड मैनेजर ने लगभग उतना ही किया है. किंतु क्लाइंट का जो रिटर्न है वो 19% का लास्ट 20 ईयर्स में यदि इंडेक्स का रिटर्न है तो इन्वेस्टर का रिटर्न इज 13.8% CAGR के साथ. तो 5.3% का अंडर परफॉर्मेंस है इन्वेस्टर्स का जबकि वो शायद मार्केट से और फंड मैनेजर से ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं मार्केट क्या लगता है. तो इसलिए ये शायद इससे पैसा कैसे हम लोग कमा पाए दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. शायद उसमें एडवाइजर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो गैप है मार्केट में 5.3% कम की जगह पर हम लोग एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे कमा पाए दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. जहाँ तक मार्केट की बात है आई थिंक जो अभी बात चल रही है मार्केट बहुत तेज हो गया सब कुछ हो गया. इसका एक कारण सिर्फ यही है क्या मार्केट नया हाई बना रहा लगातार. और एक हम लोग जो 23-24 के बैंड में हायर बैंड में ट्रेड कर रहे हैं ना तो लग रहा है कि मार्केट लगातार ऊपर बढ़ रहा है. बहुत लोग मिस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी. तो अब क्या करना चाहिए तो अपॉर्चुनिटी 2021 से मिस कर रहे हैं लोग. मार्केट बहुत बढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल करके मन की भड़ास निकालते हैं मार्केट बहुत बढ़ गया. ये शायद बबल से दूर तक बबल के पास में नहीं है. तो यहाँ से हाँ ऑफकोर्स इंडिया जिस पोजीशन में आज के समय में है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जियो पॉलिटिकली मैक्रो इकोनॉमी को लोग देखें ओवरऑल जो लिक्विडिटी का सिनेरियो है जो स्टेबिलिटी है इन्फ्लेशन में करेंसी ब्यूटीफुल प्लेन मानिए तो इन्फ्लेशन वगैरह जितनी चीज़ है ना ये शायद इंडिया होते कुछ तो मोदी जी का कुछ गवर्नमेंट का अच्छा कर्म भी था और कुछ अल्लाह भी मेहरबान था. ये इतनी अच्छी से अलाइंड है सारे फोर्सेस क्या टेलमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. इस गवर्नमेंट में इस बार कोalition गवर्नमेंट आने के बाद बजट जिस हिसाब से आया इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल पे बहुत फोकस था. संदीप जी आपका क्या व्यू है इस सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बोला जा रहा है कि वो चौथे पहिए की तरह इकोनॉमी को आगे लेके जा रहा है तो क्या वो सेक्टर कितना चला हुआ है या और कितना स्टीप बाकी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. So manufacturing, again, आप देखिए obviously budget was very favorable for manufacturing sector, but otherwise also a lot of things are playing out for manufacturing sector since last 2 years. जैसे आपको याद होगा मेक इन इंडिया एक्चुअली 2014 में आया फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स टू डू वेल. जो 2-3 चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है वो बहुत लेट आई. जैसे सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर केम इन फॉर्म ऑफ GST in 2017, lower tax rate in form of corporate tax cut came in 2019, PLI kind of initiative came much later. So a lot of things which are required for manufacturing sector to do well came in last 2 years. And second thing, in 2014 we as a country were trying to get manufacturing pie. पिछले कुछ सालों में क्या चेंज हुआ है स्पेसिफिकली आफ्टर 2018-2019 में जब US और चाइना के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ and COVID which happened in 2020, a lot of large corporates and developed countries are also now willing to diversify their supply chain. So that's where actually a lot of things are playing out for manufacturing sector, and I think manufacturing sector can do well from a longer term perspective also. Having said that, दो चीज़ें हैं, एक होता है business cycle और एक होता है market cycle. A lot of time business cycle can last for long
बट मार्केट साइकिल काफ़ी बार जल्दी प्ले आउट हो जाता है. दैट्स द रीज़न ideally you should have a very flexible approach. So in a way you should not say that manufacturing as a investment opportunity can last for 5 years, 10 years. It can last, but you have to be very flexible that way कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन हो गया है वहाँ से you can actually switch out and find more ideas कि जहाँ पे आपको comfort है. But otherwise lot of things are playing out for manufacturing at this point. आशीष जी, आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ता जा रहा है और काफ़ी अभी तो ये बारिश के सीज़न के बाद काफ़ी क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको क्या लग रहा है कि हाउ गवर्नमेंट के पास कितना पैसा, जो डेफिसिट कम हो रहा है उस हिसाब से उनका स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो वो सेक्टर का आपका भी क्या लग रहा है? ये क्या है एक्चुअली कोविड के बाद जब आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल आप समझो कि गड्ढे में है, राइट? तो जब आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में जाती है तो आप और हम जो है, हम लोगों का तो हिम्मत होगा नहीं पैसा लगाने का या इन्वेस्टमेंट करने का, राइट? मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स में उसकी बात कर रहा हूँ. सो जनरली क्या होता है, जब आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाती है तो उसको गड्ढे में से निकालने के लिए, एक्टिविटी चालू करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड, राइट? ये गवर्नमेंट के पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी उनके ऊपर क्या आरोप था कि भाई ये लोग अपना सरकारी मशीनरी चलाने में ही खर्चा करते हैं, अपना गवर्नमेंट स्टाफ का खर्चा, सब्सिडी का खर्चा, लोगों को चीज़ें मुफ्त में देने का खर्चा, ये सब चीज़ों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ठिकाना नहीं है. ये गवर्नमेंट उल्टा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर है, राइट? और पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा किया, राइट? अब पॉइंट क्या है कि जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी है, वैसा हम लोगों ने 2006, 7, 8 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी देखा, करेक्ट? तभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में बहुत पैसा आया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. दूसरा चीज़, पिछले बार जब तेजी हुआ ना, तभी ऐसा सीखने को मिला कि B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस. तीसरा सीखने को मिला B2G, वेयर कस्टमर इज गवर्नमेंट. जनरली ऐसा मानते हैं कि भाई इफ योर कस्टमर इज गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ ग्रेट बिजनेस एक्चुअली, नॉट अ वेरी रिलायबल, नॉट अ वेरी ग्रेट सिचुएशन, करेक्ट? तो अभी बहुत गर्म हो गया, बहुत तेजी हो गया, ऑर्डर बुक पे सब चल गया. ऐसा हमने 15 साल पहले भी देखा. डजंट एंड वेरी वेल. अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो. कैश फ्लो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा बनना चाहिए. वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर EPS, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पैट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑर्डर बुक. वो सब अभी जो चल रहा है वो ऑर्डर बुक पे ही मार्केट चल रहा है. हाँ, मतलब एक बार ऐसा देखा कि कंपनी का दाम बढ़ गया, भैया इसने उसको ऑर्डर दिया है, फिर उसको प्रेस रिलीज देना पड़ा कि नहीं हमको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला. ऐसा भी हो रहा है, राइट? करेक्ट? सो आई थिंक देयर इज ओवर एक्साइटमेंट. गोपाल जी, आपका व्यू इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका क्या व्यू लग रहा है? इस गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सेक्टर में और EV में बहुत पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो EV का चेंज आ रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेशली आपको क्या लग रहा है EV और ऑटोमोबाइल स्पेस? देखिए क्या है कि रिन्यूएबल्स पे फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए EU में भी जो है 2026 से आपका कार्बन टैक्स लगेगा. इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग टू EU यू हैव टू बी कार्बन न्यूट्रल, राइट? तो रिन्यूएबल्स में सबसे बड़ी भी अपॉर्चुनिटी है, जो 5 लाख मेगावाट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो T&D सेक्टर में है. पहले जब प्रोजेक्ट्स अपन लेते थे तो सबसे पहले आप लैंड देखते थे, अभी शॉर्टेज है ट्रांसमिशन लाइन की. तो T&D सेक्टर जो है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो इन्वेस्टर को आज के डेट पे, और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. 5-10 ईयर्स की अपॉर्चुनिटी है, इसको डेफिनेटली कैप्चर करना चाहिए. दूसरी बात ये है कि ये आप समझिए कि EV लगाना जो है उसके लिए आपको सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो काफ़ी लंबा समय लगेगा. तो पहले जब EV स्टार्ट हुआ तो लोगों को ये लग रहा था कि जो है आइस जो है वो फिनिश हो जाएगा, पर अब ये श्योरिटी हो रही है कि आइस एंड EV बोथ विल कोएग्जिस्ट, राइट? तो इसलिए
अपने को बैलेंस अप्रोच लेना है और मुझे लगता है कि जो बैलेंस अप्रोच से चलेगा वो बेटर रहेगा। दूसरी बात, ईवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सुपर फास्ट हो गई है एंड दे आर इवन बेटर देन यूएस एंड दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द सेक्टर। Even if we are successful in battery technology, we are not sure how competitive we would be in terms of China. So इसलिए मैं बोलूँगा कि as an investor where we are investing, we should have a balanced view between ICE and EV. Both will coexist. और success in this business is all about battery technology. अभी तक अपन असेंबली कर रहे हैं, पर फ्यूचर में वो लीडर बनेगा जिसकी बैटरी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहेगी। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर ओवरऑल में जिस हिसाब से ईवी के अनाउंसमेंट्स की वजह से आई थिंक रैली जो 1-1.5 साल 2 साल से दिखी है, आई थिंक लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स एंड इवन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का मूवमेंट डबल ट्रिपल हो चुका है, लाइक इवन 2-व्हीलर स्पेस में आप देखें तो जिस हिसाब से, सो आर दिस वैल्यूएशंस जस्टिफाइड? जो रूरल थीम पिकअप हो रही है जिस वजह से इसकी बातें होती है, तो क्या ये वैल्यूएशंस ऑटोमोबाइल में जस्टिफाइड है? देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि स्टॉक मार्केट इज द स्लेव ऑफ 2 थिंग्स। वन इज अंडर ओनरशिप एंड सेकेंड इज अर्निंग अपग्रेड। तो जब 2017-18 में जब सबसे पहले ईवी आया तो सबको ये लगा कि ईवी का पेनिट्रेशन सबसे इजीली 2-व्हीलर में होगा। तो पीपल हैव रिटर्न ऑफ द 2-व्हीलर सेक्टर एंड एनीथिंग रिलेटेड विथ आइस इन ऑटो एंड दे वर रिटर्न ऑफ। यदि आप देखेंगे कि ये सब स्टॉक 40-50-60% ड्रॉप हो गए और सब फंड मैनेजर ने इस पोर्टफोलियो से ये सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया। जबकि 2-व्हीलर इंडस्ट्री में जो आई सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है, राइट। आप यदि बजाज ऑटो देखेंगे, पूरे प्लांट डेप्रिशिएटेड है, उसमें 400 करोड़ का खाली उनको जो है टोटल डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस देन 150 करोड़ है। तो वो टोटल फ्री कैश फ्लो जनरेशन है। जैसे सुमैया जी ने कहा क्लियरली कि मार्केट इज स्लेव ऑफ फ्री कैश फ्लो एंड आरओई। तो 2-व्हीलर में क्या है कि अपनी टेक्नोलॉजी स्पेशली आइस में वेरी प्रूवन है, उसमें फ्री कैश फ्लो एंड आरओई बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट होता है। और मार्केट ने उसको अंडर ओन कर दिया क्योंकि ईवी आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि ईवी एंड आइस दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो और जैसे मेटल प्राइसेस वगैरह सब नीचे हैं, राइट, तो आप देख रहे हैं कि ईवी की इस आइस कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है, राइट। तो और फ्री कैश फ्लो बहुत हाई है और ये अंडर ओनरशिप थी, राइट, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो आप उठाएंगे ना, सबने ये 2-व्हीलर को राइट ऑफ कर दिया था। इसलिए सबसे ज़्यादा रिटर्न सबको सरप्राइज किया है वो 2-व्हीलर ऑटो स्टॉक्स। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ एक्सेसेस जब अंडर ओन सेक्टर चलता है तो फॉलो बाइंग आती है। आज के डेट पे साहब हम लोग जो है, मैं 95,000 करोड़ का फंड संभालता हूँ। आप बड़े फंड्स को पोजीशन शिफ्ट करने के लिए, और जैसे मैंने सुबह भी कहा कि 99% आज के डेट में शेयर मार्केट में F&O पे काम होता है, कैश मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। यदि आपको जो है 10,000 करोड़ का शेयर लेना है, बिल्कुल भी पसीना छूट जाएगा। 10,000 तो छोड़िए, आपको 1,000 करोड़ का शेयर नहीं आएगा। इसीलिए जो है जब भी ये सेक्टोरल रोटेशन होगा ना, मैसिव प्राइस परफॉर्मेंस आएगा, जो एज ए कॉमन आदमी और जो छोटा फंड संभालता है ना, वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे अभी आपने नियर टर्म देखा, मैं एक्सटेंड करता हूँ आईटी में, फरवरी में सबको लगा कि यूएस में 10 ईयर जिसे के बाद अब 5% की हार्ड लैंडिंग हो जाएगी, सबने आईटी सन ऑफ कर दिया। और जैसे बॉन्ड यील्ड्स रैली करनी स्टार्ट की, वहाँ पर डेटा मॉडरेशन पे आए, कंपनियों ने मिड लेवल पे हायरिंग स्टार्ट की। यू सी आईटी इंडेक्स इटसेल्फ हैज गिवन अस 40% रिटर्न, राइट, क्योंकि ये अंडर ओनरशिप हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि बाजार में जो भी होता है हर कुछ फेयर नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा या तो डाउनसाइड पे में अंडर वैल्यूएशन होगा या अपसाइड में ओवर वैल्यूएशन होगा। तो पर मार्केट इज वे ऑफ ओनली 2 थिंग्स। हमेशा ये गांठ बांध के रख लीजिए, अंडर ओनरशिप एंड अर्निंग अपग्रेड, बस। अभी भी रेलवेज और पीएसयूज के स्टॉक्स के पीछे रिटेल में आई थिंक अभी भी बहुत उत्साह है। क्या आपको लगता है ये सेक्टर ओवर वैल्यू है या स्टीम अभी भी बाकी है? ये देखिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पहले क्या होता था, पीएसयूज के ऊपर लोगों का नज़र इसी में रहता था कि कभी इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अभी आप देखिए तो ये गवर्नमेंट इज यूजिंग पीएसयू एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी।
दे आर यूजिंग PSU टू ड्राइव इन्वेस्टमेंट. PSU का जो मैनेजमेंट है उसका भी एक्साइटमेंट लेवल, उसका भी जो परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, बहुत सारा चीज दिस गवर्नमेंट हैज एक्चुअली चेंज. दे आर ट्राइंग टू रन दी PSUs एज बेस्ट एज दे कैन रन कंपेयर टू पास्ट. तो चेंज तो काफ़ी हुआ, करेक्ट. दूसरा चीज़ क्या है कि जब भी कोई चीज़ एक लेबल या थीम बन जाता है, देन यू हैव टू बी केयरफुल, करेक्ट. अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. थोड़े दिन पहले मैं एक मीटिंग में गया, तो एक साहब ने मेरे को पूछा कि SME, आप लोग SME का फंड क्यों नहीं लाते हो, और SME हम लोग को. मैं बोला भाई आपने मेरे को ये सवाल पूछा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अंदेशा है. પૂછવું પડે એટલે ખબર પડે કે ભાઈ હવે આપણે શું કરવાનું, એટલે બહુ ચલાઈ ગયું. आई थिंक डिफेंस, HDFC डिफेंस फंड बहुत चर्चा में रहा है एंड आई थिंक बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत दिया है और अभी आई थिंक सब्सक्रिप्शन बंद भी किया है. डिफेंस में आपको भी लगता है वैसा ही सिनेरियो है जो आशीष जी ने बोला कि वैल्यूएशन अभी थोड़ा हाई एंड पे स्ट्रेच हो चुके, वो आई थिंक एक अलग जोन में चले गए. आई थिंक वो ऑर्डर बुक पे ज़्यादा चल रहा है, जैसे आपने बताया कि इज देयर दैट स्टोरी के एक्चुअल में प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो आएगा या अभी भी वो ऑर्डर बुक वाला थियरी चल रहा है. अभी आई थिंक हर 1-2 दिन में हम लोग क्वेश्चन टीवी में देख रहे हैं कि इसको ऑर्डर बुक मिला और 2% बढ़ गया, HAL बढ़ गया, BEL बढ़ गया. ये देखिए, आप ये समझिए, जैसे जो है, पहली बात यह है कि डिफेंस डेफिनेटली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है और हमारे फंड ने भी 140% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है. तो ये थीम अभी प्ले आउट हो गया नियर टर्म में. इसमें हमको भी लगा कि वैल्यूएशन बहुत एक्सेसिव है और हमारे इन्वेस्टर्स को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो हमने इसमें सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया. पर मैं ये कहूँगा कि ये बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है. आज इंडिया की पोजीशन की बॉर्डर्स देखिए, आज हमारे इधर कोई भी फ्रेंडली कंट्री नहीं है, राइट. वी हैव टू बी वेरी वेरी कम्पिटिटिव. और आप स्पेशली इंडियन नेवी में देखेंगे ना, हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट. हमको इस सेक्टर में हेवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. और ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आत्मनिर्भरता की कि हमको सेल्फ रिलायंट होना है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है, तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है और इसमें बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है. पर नियर टर्म में मैं बोलूँगा कि वैल्यूएशन एक्सेसिव है, तो ये सब कुछ टाइम करेक्शन होगा और ये टाइम करेक्शन के बाद ये सेक्टर फिर से अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए. तो इस पर कीप एन आई. ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है और वर्ल्ड वाइड. अभी आप इसके बाद छोड़िए, अभी मारियो द्रागी ने 2 दिन पहले बोला है कि ECB हैज़ टू इन्वेस्ट हेविली इनटू डिफेंस पूरा यूरोजोन बिकॉज दे आर हेविली रिलायंट ऑन US और उनको कॉमन डेट पूल बनाना चाहिए, राइट, टू इन्वेस्ट इन डिफेंस. तो डिफेंस जो अपॉर्चुनिटी है ना वो हेवी है, राइट. बस ये है कि नियर टर्म वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम करेक्शन होने दीजिए, परंतु ये सेक्टर को इग्नोर मत कीजिएगा. डेवलप्ड नेशंस में अभी इंटरेस्ट रेट घटने की बातें शुरू हो चुकी है. कुछ कंट्रीज ने तो ऑलरेडी घटाना भी शुरू कर दिया. एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स US कि उनका इंटरेस्ट रेट घटेगा. तो इससे आपको क्या लगता है कि FIIs फ्लो में या उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में कैसा रहेगा उनके इंटरेस्ट रेट कट होने से? यदि हम लोग ये न्यूज़ टॉपिक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली यदि हम लोग एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए भाई इन्वेस्टर्स को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है इंडिया के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से. आज जैसे हमारी जापान का इंटरेस्ट रेट है, सालों से तो नेगेटिव था, वहाँ पे नहीं बढ़ी थी और तेजी आ गई. चाइना में 6.5% का इंटरेस्ट रेट था, अभी 3.5% हो गया, थोड़ी तेजी आ गई. US में जो बिगेस्ट बुल रन आया था, अब 66 से 81 में इन्फ्लेशन रेट खूब हाई था. 1980 से 2000 का इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई था. अभी क्या आप देखो, अभी US में इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, ज़बरदस्त ग्रोथ है. तो ये क्या होता है, टॉपिक इंटरेस्ट की टॉपिक है, ये तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. इंटरेस्ट रेट का डायरेक्टली बेनिफिट है, कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, एज एन एसेट क्लास इक्विटी बेहतर लगने लग जाती है, आपका डिस्काउंटिंग रेट फ्यूचर वैल्यूएशन का बेहतर होने लगता है. तो इंटरेस्ट रेट का इंपॉर्टेंस है ज़रूर. और एज पर वन एस्टिमेट यदि 1% का इंटरेस्ट रेट कम होता है इंडिया में तो 2.5% का EPS बढ़ना चाहिए. किंतु यदि आप इसको देखेंगे ना, इंटरेस्ट रेट कम होता है, एक तो
आज बहुत क्लियर इंडिकेशन है यूएस में, वो अचानक में बहुत डॉगिस हो गए वहाँ पर, नहीं तो मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करने लग गया, बट 0.5% इज तो गिवन। तो ये जो इंटरेस्ट होता है उसमें बहुत सी चीज़ होती है, मार्केट पहले से अब्जॉर्ब कर चुका होता है। सेकंड, पास ऑन कितना होता है। यदि एक वो डेटा देख रहा था मैं कहीं पर, क्या जब लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट 2.5% कम हुआ तो कॉर्पोरेट का अर्निंग्स में सिर्फ 0.69% का फर्क पड़ा पास ऑन होने में। जैसे होता है ना कि जब सब्जी का दाम बढ़ता है तो रेस्टोरेंट वाले दाम सबका बढ़ा देते हैं, কিন্তু जब घटता है तो घटाते नहीं है। तो उसका पास ऑन कितना होता है। जब किंतु इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा हुआ पर 2.5% जब बढ़ा इंटरेस्ट रेट तो 1.6% पास ऑन हो गया, किंतु कम हुआ तो कॉर्पोरेट बेनिफिट में सिर्फ 0.69 का फर्क आया। तो ये और फिर जो टाइम लैग भी होता है, इमीडिएट नहीं, वो जर्नी है, कम होगा धीरे धीरे आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये ऐसा नहीं है क्या इंटरेस्ट रेट कम हो गया वहाँ से फेड में हम लोग न्यूज़ सुने तो एक बार जरूर एक बार शॉर्ट टर्म स्पॉट आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो मार्केट बहुत हाथी की तरह बहुत कुछ समा के अपने आप में चलता हुआ धीरे धीरे। तो इंडिया डेडिकेटेड फंड में कभी भी नेगेटिव फ्लो नहीं है। आप लास्ट देखेंगे आप, मैं जस्ट एक डेटा देख रहा था 2023 जनवरी से ऑलमोस्ट वीक ऑन वीक इंडिया डेडिकेटेड फंड में पैसा आया है। इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट, इंडिया के नाम से, किंतु इंडिया में सो स्मॉल 1.5% ऑफ ग्लोबल मार्केट क्या था पहले, तो अलग से पैसा नहीं लगाना था। इंडिया में पैसा आता था इमर्जिंग मार्केट फंड्स में, वो कभी 2.5-5% था, फिर 2021 में 9% का लोकेशन था इमर्जिंग मार्केट में, अभी वो 22% हो गया। चाइना 37% था, 21% हो गया, हाईएस्ट लोकेशन है। तो जितना रिडेम्पशन आ रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ इमर्जिंग मार्केट ओवरऑल खराब किया है, उसका रिडेम्पशन है, तो उसके कारण से बाय डिफॉल्ट इंडिया में सेल आ जा रही है। किंतु इंडिया पर से में लगातार पैसा आ रहा। एनआरआई $115 बिलियन का एनआरआई रेमिटेंस है, टोटल 14% पूरा वर्ल्ड का रेमिटेंस का इंडिया में आता है। तो वो जो पैसा आ रहा है और इंडिया स्टोरी, अब आशीष जी वर्ल्ड को जाते हैं, मैं भी जितना जाता हूँ ग्लोबली, इंडिया स्टोरी तो बेचनी नहीं पड़ती है। आप कैसे मैनेज करते हो, कहाँ करोगे। एक तो होता है क्या, यूएस में वो बेचारे लोग हो गए, वो इस इंटरेस्ट रेट में फंसे हुए लोग, उनको करे नहीं करे, क्योंकि वो जो कोविड के टाइम पर बेतहाशा पैसा सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 800 कितना डॉलर का सब अकाउंट में। अब वो इन्फ्लेशन बंद गया वहाँ से, बोर्ड एकदम स्ट्रक्चरल नेचर का गया। इंडिया में तो क्या है, देखो इन्फ्लेशन का सबसे अच्छा नंबर है, आप यदि जीडीपी डिफ्लेटर को देखो, सीपीआई में है, फ्यूल का वेटेज ज़्यादा, फूड का वेटेज ज़्यादा, तो आप उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते। इंडिया में यूएस में 10% का वेटेज है, यहाँ पे 29%, 37% का वेटेज है। आई थिंक ये जो लिक्विडिटी फ्लो इंडिया में लॉन्ग टर्म में, इसी कारण से बोलते हैं इंडिया का वैल्यूएशन बैंड ही चेंज हो गया, 20 से 24 इज नाउ ए न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी फ्लो डोमेस्टिक तो है, ग्लोबल लेवल पे भी ये बहुत जस्ट इंटरेस्ट के कारण से नहीं, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। काफ़ी हम लोग लगता है कि जब धीरे धीरे इंडिया इज गोइंग टू वेरी सीरियस प्ले। आशीष जी, आप एफआईआई का भी फ्लो काफ़ी कुछ मैनेज करते हैं, एफआईआई से काफ़ी मिलते हैं। एफआईआई की सोच जो कृष्णा जी ने बताया कि इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी बहुत क्लियर है और इमर्जिंग मार्केट की वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एफआईआई का जो सेलिंग का जो नेगेटिव डेटा जो 2-3 साल का दिख रहा था, जो अभी दिख भी रहा है कि थोड़ा सा आपने सुबह जो बताया था कि वो वापस से आना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया। तो जिस स्पीड से जैसा पैसा गया था वैसा ही बड़ा फ्लो वापस से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और एफआईआई में अगर इंडिया का वेटेज ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है इमर्जिंग मार्केट में, तो क्या वो भी एक थ्रेट रहेगा कि अब इससे ज़्यादा बहुत नहीं बढ़ पाएगा, या उस वजह से भी थोड़ा फ्लो अटक सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं सी एक्चुअली તમે જોવો ને તો સેમ જેમ આપણે સવારે વાત કરી, ઇટ ઇઝ ટ્રુ કે ભાઈ $100 જો ઇમર્જિંગ માર્કેટ ફંડમાંથી નીકળે તો એ નીકળતા હોય ચાઇના માટે થઈને, રશિયા માટે થઈને કે બીજા કોઈ કારણો માટે થઈને, પણ ઇમર્જિંગ માર્કેટમાંથી $100 જો નીકળે તો લેવા નહીં દેવા $10-15 આપણે બી નીકળી જાય છે. બીજી વાત શું છે કે છેલ્લા 2-2.5 વર્ષમાં જ્યારે ઇમર્જિંગ માર્કેટમાંથી પૈસા નીકળતા હતા, ઓરિજિનલી આપણું વેટેજ ઓછું હતું. હવે જો પૈસા આવવાની વારી આવે તો બધા લોકો શું જોઈએ કે ભાઈ ઇમર્જિંગ માર્કેટ ફંડ જે છે એનું આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં ફંડ મેનેજ કરીએ તો નિફ્ટી 50, નિફ્ટી 500 એટલું કે આપણે બેન્ચમાર્ક જોઈએ. તો એ તો MSCIનું એક ઇમર્જિંગ માર્કેટનું બેન્ચમાર્ક છે.
ઇમર્જિંગ માર્કેટના બેન્ચમાર્કમાં 3-4 વર્ષ પહેલાં ઇન્ડિયાનું વેટેજ 10થી ઓછું હતું. આજની તારીખમાં ઇન્ડિયાનું વેટેજ 20થી વધારે છે. એટલે ગયા ત્યારે એક રેટ પર ગયા અને પાછા મૂકવાના આવે ને તો અલગ વેટેજ. અને ઇમર્જિંગ માર્કેટના ઇન્ડેક્સમાં નંબર ઓફ સ્ટોક્સ ઇન્ડિયાના સૌથી વધારે એડ થયા છે છેલ્લા 4 વર્ષમાં. વેટેજ બી વધ્યું અને નંબર ઓફ સ્ટોક્સ બી એટલા એડ થયા છે. રાઈટ. બીજી વાત, રૂપિયાનો ડિરેક્શન. જો રૂપિયો ડેપ્રિશિએટ થતો હોય તો રાહ જોવે લોકો, કારણ કે તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ જો રૂપિયો એપ્રિશિએટ થાય તો એ લોકોના રિટર્નમાં જોડાય, અને જો રૂપિયો ડેપ્રિશિએટ થતો હોય તો એ લોકોના રિટર્નમાંથી ઓછું થાય. રાઈટ. એટલે જો યુએસમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટે અને ડોલર ઘટે, જેમ છેલ્લા 15 દિવસથી જોવા મળે છે આપણને, જો યુએસમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટે અને ડોલર ડેપ્રિશિએટ થાય તો રૂપિયો એપ્રિશિએટ થાય. અને હિસ્ટોરિકલી એવું જોવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ જ્યારે રૂપિયો અપ્રિશિએટ થવાનું બાયસ આપતું હોય ને, વેન ઇટ ઇઝ શોઈંગ અ ડિરેક્શન દેટ ઇટ વિલ અપ્રિશિએટ, ત્યારે એફઆઈએફ વધારે આવતા હોય. એટલે અને બીજી લાસ્ટ એક ચીજ તમે સમજો કે છેલ્લા 15 વર્ષમાં, આપણા ઓડિયન્સમાં કદાચ બધાને નહીં ખબર હોય, લાસ્ટ 15 years, ટેક 10 years 15 years કોઈ બી લાંબા ગાળામાં, લાસ્ટ 10-15 years આફ્ટર અમેરિકા, India is the best performing stock market in US dollar terms. હા, અહીંયા આપણા ઘણા બધાના રિલેટિવ્સ અમેરિકામાં છે, ઘણા બધા એનઆરઆઈસ છે. કોઈ બી એનઆરઆઈને આપણે કહો ને કે ઇન્ડિયામાં રોકાણ કરવું જોઈએ તો એ લોકો તમને એમ જ કહેશે કે ભાઈ રૂપિયો બહુ તૂટે છે. રૂપિયો તૂટ્યા પછી ડોલર ટર્મ્સમાં ઇન્ડિયા ઇઝ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટોક માર્કેટ, સેકન્ડ ટુ યુએસ. US is number 1 performer in dollar terms. India is the second best performing stock market in dollar terms in last 10 to 15 years. The probability that in next 10 to 15 years it will be best performing, that probability is actually higher now. Higher than US. કારણ કે હવે તો see now the belief is that rupee will appreciate. See रुपया को जितना टूटने का था वो तो टूटा है अभी तो आने वाले समय में शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म लोगों का बिलीफ है कि रुपया अप्रिशिएट होगा. Correct. So in dollar terms we are going to make more return. NRIs भी हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स NRIs होते हैं, एज यू सेड, यहाँ पे भी काफ़ी NRIs होंगे. सो वो लोग की सोच कई बार ऐसी होती है कि यार 70 पे इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के 10 साल की आप लोग बातें करते हो, 10 साल के बाद लेके जाओ तब 100 पे लेके जाएंगे तो हमारा तो वैसे भी पैसा नहीं बनेगा. नहीं पण इंडिया में अगर स्टॉक मार्केट का CAGR 32 इयर्स का, सेंसेक्स का 32 इयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न 12% के ऊपर है, प्लस डिविडेंड रीइन्वेस्ट आप करोगे 1.5-2% ऐड करो, 32 ईयर का कंपाउंडेड रिटर्न 14% है. और 32 इयर्स में करेंसी डेप्रिशिएशन एनुअलाइज्ड 3 से 3.5% है. सी लोगों को क्या लगा, क्या होता क्या है, जब गिरता है ना तो धड़ाम से गिरता है, फिर 3-4 साल कुछ नहीं होता, वो प्रॉब्लम है. लेकिन अगर आप पैसा डाल के भूल जाओगे तो लंबे अरसे में डेप्रिसिएशन 3-4 साल है. और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ हम लोग फिर से मिलेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद. इन्वाइट करना अभी 30-40 का, 30 के बदले 40 साल हो जाएगा, बुलाना हम लोग को. तभी इस रफ्तार पे रुपया डेप्रिशिएट नहीं करेगा, अभी चेंज हो गया. एप्रिसिएशन इट विल नॉट डेप्रिशिएट सो मच नाउ. इंटरेस्ट रेट का US का इफेक्ट जो आएगा उस वजह से इंडिया में आपको गोपाल जी क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कब डाउन साइकिल वापस से शुरू हो सकती है, और अगर वो हुई तो उससे सेक्टोरल कैसे चेंज होगा? जनरली इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होता है तब सेक्टोरल चेंजेस आते हैं, तो कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? एक जो है सबसे पहली बात यह है कि लास्ट 7-8 ईयर्स में ना US में मैग्निफिकेशन 7 का रिटर्न सिग्निफिकेंट हाई है. राइट. जो लार्ज लिक्विड सेक्टर्स हैं तो वो भी उनके लार्ज परफॉर्मेंस ने जो है EM फ्लोज को भी इम्पैक्ट किया है. अब जो है वहाँ पर उनका भी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी मैच्योर लेवल पे इसमें रिच कर रहा है. तो उसके कारण जो है मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड EM में विथ रेट कट इन US फ्लो कैन स्टार्ट. और इंडिया में भी आज के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से FII EM इंडेक्स से अंडरवेट हो गए. राइट. और इंडिया इज डूइंग सो वेल कि फंड मैनेजर्स, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स who work with me in the past organization, now managing money in many EM funds. They are under depression because
I tell you very frankly, they are under depression because what happened, they thought India is very expensive, okay, and they are really underweight. And now market has really rallied and they are waiting for correction. Okay, they are all waiting for a correction so they can enter in the market. Because in the red hot market, if you enter, believe me, you will not get the stock and the valuation will further go up. Like what happened on Thursday, I don't know exactly, but you can see if you put $1 billion, what will happen to the Nifty, right? Because now we are not a seller, we are getting regular inflows, right? तो अभी इधर पे स्टॉक की सप्लाई किधर है? यदि FII ने पैसा डाला भी तो खाली प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक नहीं मिलेगा. यस, तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. इफ यू मैनेज अ लार्ज मनी इन अ रेड हॉट मार्केट, तो ये मुझे लगता है हम लोग वेट कर रहे हैं करेक्शन का. इसलिए ना मीनिंगफुल करेक्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि बायर्स आर वेटिंग फॉर अ मीनिंगफुल करेक्शन. तो वो मीनिंगफुल करेक्शन मुझे नहीं दिखता, इसलिए वो 2-3% में तुरंत पाएंगे. यस. दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि सेक्टोरल रोटेशन की बात, मार्केट ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है. तो यूएस में रेट कट जो इमीडिएट होने वाला है ना, वो मोर और लेस प्राइस्ड इन है. और यदि किसी एक्सपर्ट का व्यू है कि 50 बिप्स होगा, किसी का 25 बिप्स है, पर यदि 50 बिप्स जिसने सोचा है वो शायद डिसअपॉइंट भी हो सकता है, राइट? तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि नियर टर्म क्या होने वाला है ना, वो मत सोचिए, पर ये है कि रेट कट होने वाला है, ये मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया, इसलिए आईटी ऑलरेडी रैली कर गया है. अब गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा वो डायरेक्शन बताइए, राइट? पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि जब भी रेट कट यूएस में होता है, उसके दो चीज़ होती है. कॉस्ट ऑफ फंड डेफिनेटली कम होते हैं, तो ईएम में फ्लोस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यदि यूएस में मैग्निफिसेंट 7 में सैचुरेशन लेवल आता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस, तो ईएम में बहुत बड़ा पैसा है. क्योंकि देखिए, आपको लगता है कि इंडिया 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 है, आप खाली एज ए फंड मैनेजर ना खाली आप एनवीडिया में मेहनत करते और आपने अपने लाइफ का जो पैसा एनवीडिया में बनाते ना, वो यहाँ इतने गला मजदूरी करके भी नहीं बनता, राइट? तो आप ये समझिए, यदि वो सब स्टॉक पीक हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर पैसा बड़ा आएगा. बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि शॉर्ट टर्म तो कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या हमारा इंटरेस्ट रेट साइकिल will be still depending on when US cuts the rates, और if our currency is such a scenario कि हम लोग appreciation की भी बात कर रहे हैं, और अगर हमारा इकोनॉमिक साइकिल का ग्रोथ इतना अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, why are we waiting for US to rate cuts, या हम लोग उससे पहले भी रेट कट कर सकते हैं? देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हमने आरबीआई से काफ़ी इंटरेक्शन किया है. अभी करंट आरबीआई का फोकस ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग है टोटल. इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने पहली बार तो इतना लिक्विडिटी टाइटनेस की बात भी चल रही है, तो भी कभी भी सीआरआर काटा नहीं उन्होंने, राइट? देयर इज अ रूम टू कट सीआरआर, बट दे डोंट वांट टू कट सीआरआर. और सेकेंड हाफ में जनरली सितंबर से मार्च तक इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रहती है इंडिया में, तो उनको लगता है कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है. तो अभी वोलेटाइल सिचुएशन है, तो आरबीआई वेट कर रहा है. तो मुझे लगता है कि अपने पास सब एम्यूनिशन है रेट कट करने का, पर आरबीआई का जो फोकस है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है. जब तक उन लोगों को लगेगा क्लियरली वी हैव वन द बैटल अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, वो स्लो जाएंगे. दिस इज वेयर वी आर, बट वी हैव ऑल द एम्यूनिशन टू कट रेट, राइट? बट आरबीआई जो है वो ये देख रहा है कि अपने यहाँ पे ना कंजम्पशन बहुत फास्ट बढ़ रहा है. आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ, इंडिया में अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो है ना 29% ऑफ सिस्टम हो गई है. आपको पता है यूएस में 21% है. अभी हमारे अनसिक्योर्ड लेंडिंग इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि हमने डेवलप वर्ल्ड को क्रॉस कर गया है, राइट? तो ये ना बहुत बड़ा रिस्क है कि यदि हमने रेट काटा और ये बढ़ेगा, तो इससे ना इन्फ्लेशन बहुत शूट हो सकता है. दैट इज द आरबीआई's worry, इट्स नॉट माय worry, आई एम स्टेटिंग व्हाट दे आर सेइंग. तो जब भी उनको लगेगा कि इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है, डेफिनेटली वी हैव ऑल द डेटा पॉइंट्स, ऑल द कंटूर्स टू कट अ रेट, बट आरबीआई इज वेरी फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन टारगेट.
वो रेट कट से अगर अनसिक्योर्ड लेंडिंग में हम लोग इतने हाई रेट्स पे हैं, तो क्या वो रिस्क है हमारे एनपीएस बढ़ाने के लिए, जिस वजह से जनरली ये एनबीएफसीज में ज़्यादा है, तो वो एनबीएफसी सेक्टर हमारे लिए अब रिस्की हो जाए, क्लाइंट्स को वो ध्यान में रखना चाहिए? जरूर। और अब मैं साहब, प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, कोई भी आप जो है ना कॉर्पोरेट बैंक नहीं रह गए, सब कंज्यूमर बैंक ही हो गए, राइट? तो जब भी यदि ये एनपीए साइकिल बढ़ा है या नहीं, ये सबको हिट करेगा भी। तो बस ये है कि किसके अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस अच्छी है वो कम इफेक्ट होगा, पर आप सोचिए ये 29% ऑफ सिस्टम हो गया है, राइट? तो ये डेफिनेटली वॉचफुल है। इसलिए आरबीआई बोल रहा है कि जो हर चीज में हर नॉर्म्स वो टाइट कर रहे थे, आर माइक्रो मैनेजिंग द थिंग, कि ये जो है इट शुड नॉट लीड टू अ सिस्टमिक इशू, राइट? तो दैट इज देयर एंड वी विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट। कृष्णा जी, आपके हिसाब से मार्केट्स के लिए क्लाइंट्स को, रिटेल को रिस्क के एंगल से किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या लग रहा है कि अगले 2-3 साल में या 1 साल में क्या रिस्क हो सकता है मार्केट के लिए? जियोपॉलिटिकल या मार्केट के अंदर से, या किस टाइप का रिस्क लग रहा है? एक ही रिस्क है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट यदि हम लोग कम रखा है, कम रखा नहीं किया तो हम लोग बहुत लकी है। जनरली इस चीज़ को विश्वास होना, शेयर बाजार में पैसा एक्चुअली पेशेंस आता है, पेशेंस कन्विक्शन से आता है, कन्विक्शन होने से आता है, और पेशेंस रह नहीं पाता सीएनबीसी देखने वाले लोगों का। क्या पर असली रिस्क कब है ना, क्या आपका लाइफ में कुछ गोल्स है और आप उसको अचीव नहीं कर पाए, और वो अचीव आप कब नहीं कर पाओगे? आप जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम रखोगे, कभी एफडी कर दोगे, कभी वहाँ से आएगा जिसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक बार वो कर देता हूँ, अच्छा मैं कर लूँगा, और क्या हुआ 10 बार करेंगे, 3 बार लकी उनको अच्छा हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक में जाके डिस्कशन करेंगे, मैं तो ऐसा किया था, उसके कारण से कमा लिया, लोग उसको चढ़ा भी देंगे। कुछ नहीं है। इक्विटी में आपका एलोकेशन आप देखो राइट है क्या नहीं, जितना होना चाहिए वो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिस्कशन करके इक्विटी में एलोकेशन आपका कितना है, ये डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सब छोटी छोटी कहानी है, साइड के आर्टिस्ट लोग हैं। आज इंडिया ग्रो नहीं करेगा ना तो वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोग्राफी, इंडिया के जो पॉलिटिकल वहाँ पर लोकेशन है, इंडिया कभी किसी के साथ में झगड़ा नहीं करने गया। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड, ये जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो मैक्रो, आप इसके नंबर्स आप जाओगे ना, आपको बहुत लगेगा कि ये शायद इंडिया के लिए फिर अगला 10 साल तक हम लोग बहुत लकी हैं। तो रिस्क यही है कि हम लोग इक्विटी को ये छोटा छोटा चीज़ में हम लोग यदि वेस्ट नहीं करें, ये करेक्शन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। यदि पूरे वर्ल्ड में देखोगे ना, यूएस में 112 यदि बुल मार्केट बने होंगे ना तो 115 करेक्शन आए, तो आपको मौका मिलेगा उसके भी जो एलोकेशन उससे ना चुपके से बढ़ा देना है बिना सीबीसी को देखेंगे। गोपाल जी, आपको सेक्टर्स वाइज अभी अंडर वैल्यूड सेक्टर्स कौन से हैं? क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर्स अभी भी अंडर वैल्यूड है? ये ब्रॉडर मार्केट में तेजी आई है और सभी जगह पे मिड एंड स्मॉल कैप और सारे सेक्टर्स में तेजी दिख रही है, तो अभी भी अंडर वैल्यूड सेक्टर कौन सा लग रहा है? मैथमेटिकली तो अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक ही सबसे अंडर वैल्यूड है, राइट? बस बाकी जो है फेयर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड है। बस प्राइवेट सेक्टर बैंक मैथमेटिकली अभी अंडर वैल्यूड। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुके हैं। क्या हम जब एडवाइजर्स के एंगल से अगर देखें तो क्या हमको क्लाइंट्स को ये बोलना चाहिए कि मिड एंड स्मॉल कैप में से कुछ चीज़ें को या कुछ पैसों को लार्ज कैप में शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको क्लियर आंसर दूंगा, मैं इसको आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। सब फंड मैनेजर बोलते हैं कि लार्ज कैप बहुत महंगा हो गया है, पर मैं आपको ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, सब फंड मैनेजर लार्ज कैप एक्सपोजर रिड्यूस करके मिड एंड स्मॉल कैप ऐड कर रहे हैं टू जनरेट परफॉर्मेंस। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, या आप किसी की भी फैक्ट शीट उठा लीजिए, क्योंकि सब लोग आज के डेट पे परफॉर्मेंस का प्रेशर है, राइट? सब मिड कैप और स्मॉल कैप बाय कर रहे हैं और लार्ज कैप बेच रहे हैं, पर मैं बिल्कुल बोलूँगा कि रियल बबल है मिड कैप में, स्मॉल कैप में उतना बबल नहीं है। मिड कैप में रियल बबल है, क्योंकि क्या हो गया है, उसमें 150 स्टॉक यूनिवर्स है खाली, राइट? और उसमें ना सप्लाई भी नहीं आता है। जैसे रोज
जो सेलिंग आती है या आईपीओ आते हैं मैक्सिमम स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आते हैं, राइट? तो उसमें लिक्विडिटी इवेंट भी नहीं है। मिड कैप के जो 150 स्टॉक्स हैं तो उसमें ना कोई सेलर ही नहीं है। जैसे मैं लार्ज एंड मिड मैनेज करता हूँ तो मेरे को 35% मिड कैप रखना ही है। मैं मल्टी कैप मैनेज करता हूँ उसमें 25% मिड कैप रखना ही है। जो मिड कैप फंड मैनेजर है उसको मिनिमम 65% मिड कैप रखना ही रखना है। तो क्या हो गया है कि मिड कैप सबको लेना है और सप्लाई ही नहीं है। तो मिड कैप नाम में रियल बबल है, परंतु उसका कोई तोड़ ही नहीं है। राइट? तो हम लोग को ना वो मिड कैप में ऐसे ही चलते रहेगा जब तक सेबी की डेफिनेशन नहीं चेंज होगी। ये गेम ऐसे ही चलते रहेगा। और साहब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पता है सब हवा है, पर मैं एक भी नहीं बेचता हूँ। क्योंकि क्या है, मेरे को तो रोज इनफ्लोज आता है, राइट? और रोज उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है, एवरी 6 मंथ एंट्री डेफिनेशन चेंज कर देती है लार्ज मिड एंड स्मॉल की। तो मेरा मिड कैप का 5-6% ना लार्ज कैप बन जाता है। तो मेरे को 5-6% का शॉर्टेज। अब मैं दोनों मिला के 40,000 करोड़ का ये फंड संभालता हूँ, उसमें आप ये समझिए मेरे को 12,000 करोड़ का मिड कैप संभालता हूँ। तो 5-6% का चेंज हो गया ना, मेरे को 700 करोड़ का मिड कैप फिर से ढूंढने का है हर 6 मंथ नया। अब जो मेरे को रोज इन्फ्लो आता है उसका बात अलग है। अब ये मेरा चैलेंज ये है कि मैं करूँ क्या। तो ना हम लोग कोई बेचते नहीं है और रोज सबको बोलते हैं मिड कैप महंगा। नो बट सी, जो ऑनेस्ट सच बोलता है ना उसको बैकिंग करना चाहिए। Yes, yes, दैट इज वेरी गुड थिंग, राइट? गोपाल जी इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो दैट इज द रियलिटी। सी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप यू शुड बी एलोकेटिंग टू लार्ज कैप, करेक्ट? क्योंकि देखिए वेटेज होता है ना मार्केट का, वो मैटर करता है। मतलब कि अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट का सेंटर किधर है, वो देखिए 100 रुपये का टोटल मार्केट का है, उसमें लोएस्ट पॉइंट पे स्मॉल कैप का भागीदारी 10-11% और लार्ज कैप का भागीदारी 77 to 78%। आज के तारीख में लार्ज कैप का हिस्सा 63 या 64 पे आ गया और स्मॉल कैप का हिस्सा 20 पे पहुंच गया, करेक्ट? तो क्या होता है कि हर चीज का एक संतुलन होता है, करेक्ट? दूसरा चीज आप देखोगे लार्ज कैप में है क्या है लार्ज कैप में, राइट? ये बड़े बड़े बैंक्स है, बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, बड़े बड़े कंज्यूमर कंपनीज है, कुछ बड़े फार्मा कंपनीज है। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे या कोई भी मोटा इंडेक्स, बड़ा इंडेक्स देखोगे ना, तो पिछले 5 साल में प्री कोविड, पोस्ट कोविड, 2019, 2020 कोई भी बेस ले लो आप, कोविड का बॉटम नहीं लेने का बेस। बहुत लोग गलती करते हैं, कोविड का बॉटम का बेस लेते हैं। लेकिन कोविड के बॉटम का बेस क्यों नहीं लेने का? क्योंकि जब कोविड का बॉटम आया तभी तो हमको लगा कि केस फेटालिटी रेट 5% है, वैक्सीन 10 साल बाद आएगा, बैंकों का नेटवर्क साफ हो जाएगा, हम लोग डायनासोर बन जाएंगे, ऐसा लगा था। ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, तो वो नहीं लेने का। तो कोविड के पहले या कोविड के बाद आप लोगे ना तो निफ्टी का रिटर्न 17-18% कंपाउंडेड है, डिफेंस का रिटर्न 60% कंपाउंडेड है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का रिटर्न 9% कंपाउंडेड है और पूरे मार्केट का एवरेज 17-18% कंपाउंडेड है। सो पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट जो चीज मार्केट का मेन एवरेज या जो मार्केट का मेन हिस्सा है, फाइनेंशियल, आईटी, कंज्यूमर, फार्मा, ऑल दिस पुट टुगेदर इज मोर देन 50% ऑफ द मार्केट। ये सब का रिटर्न निफ्टी से थोड़ा ऊपर या निफ्टी से नीचे है और ये सब ज्यादातर लार्ज कैप है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि भाई देखो मार्केट के ऊपर कॉल नहीं लेने का, लेकिन इतना तो ध्यान में रखना है कि मार्केट इज मीन रिवर्टिंग एंड मार्केट इज ऑलवेज क्या बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। तो समझो पैसा आते रहेगा, तो जितना भी पैसा आएगा वो तो रिलेटिवली जो अभी आप हमको पैसा देंगे तो हम तो इक्विटी में डालेंगे, फिर क्या देखेंगे रिलेटिवली चीप क्या है। तो एज लॉन्ग एज मनी इज देयर, रिलेटिवली चीप विल बी बॉट एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव विल बी इग्नोर्ड। जैसे हम लोग सब स्कूल में थे तो फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, पता है? पानी का लेवल, आप वो ट्यूब को ऐसा करो कुछ भी करो, पानी अपना लेवल पकड़ के रखता है। एक ट्यूब मोटा, एक ट्यूब पतला, एक ट्यूब ऊपर, एक ट्यूब नीचे, ऐसा ट्यूब्स रहता है, पानी तो अपना लेवल पकड़ के रखता है ना।
तो मार्केट विल ऑलवेज बी ऑन रिलेटिव वैल्यूएशन. तो अभी स्मॉल कैप हैज बिकम 20% ऑफ द मार्केट. उसका लॉन्ग टर्म एवरेज 12-13% है. एंड लार्ज कैप हैज बिकम ओनली 62 और 63% ऑफ द मार्केट. उसका लॉन्ग टर्म एवरेज 76 या 77% है. नहीं तो आप कभी भी कोई न्यू नॉर्मल बोलता है ना तो रुकने का थोड़ा. नहीं, सबसे ज़्यादा डर वहीं पे लगता है. ऐसा कुछ बोलेगा ना न्यू नॉर्मल, नहीं, न्यू नॉर्मल कुछ नहीं होता है. दैट इज वन. सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप देखोगे ना ये जो देखिए जितने लोग ऑडियंस में उनको और एक क्लैरिफाई करते हैं. अगर मैं बोलता हूँ कि भाई लार्ज कैप चलेगा तो लोगों के माइंड में क्या आता है स्मॉल कैप गिरेगा. नो, वो नहीं. स्मॉल कैप अगर अपने जगह पे रहेगा और लार्ज कैप 10% ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिलेटिव चलिए, और वो दुगना चेंज होता है. करेक्ट. सी जब एक चीज एवरेज से नीचे जाता है दूसरा चीज एवरेज से ऊपर आता है तो गैप डबल. सो इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू करेक्ट द रिलेटिव वैल्यूएशन. अगर स्मॉल कैप नहीं चलेगा या थोड़ा गिरेगा और लार्ज कैप थोड़ा चलेगा तो भी फटाफट वेटेज उसका. सो आई वुड से दैट यू शुड पुट मनी इन लार्ज कैप. एसएमई आईपीओ अभी तो फुल न्यूज में है. क्या एसएमई आईपीओस भी इसके लिए रोल प्ले करता है कृष्णा जी? और सिर्फ रिस्क भी बहुत है और रिवॉर्ड्स भी बहुत है. रिवॉर्ड्स की वजह से अभी तो न्यूज में ये भी आया था कि गुजरात एसएमई आईपीओस में नंबर 1 है. हाईएस्ट आईपीओस एसएमई के यहीं पे भरे जाते हैं. जैसे देखिए हर्षद मेहता के टाइम पर आगे अचानक में इक्विटी बहुत खराब, बबल बन गया, फट गया. केतन पारिक टाइम आया, बबल फट गया. तो आप देखोगे लगातार बाजार उससे बड़ा हुआ है, लगातार बहुत डीप हुआ, वाइड हुआ है. वही अभी एसएमई निकलेगा, एसएमई आएगा, बबल है, नो डाउट अबाउट इट. 110% का CAGR ग्रोथ है 5 ईयर्स 3 ईयर्स. इंडेक्स 1500 का इंडेक्स 1 लाख पार हो गया इंडिया. तो एकदम टिपिकल बबल का जो साइन होता है, 50 का पी रेशियो चल रहा है, सारी चीज़ें. किंतु ये एक साइन है कि ये स्पेस बहुत बड़ा होने वाला है. आईपीओ में क्लाइंट्स कैसे इसको देखें या कैसे चूजी हो जाए. आप जो बोल रहे हो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, तो किस हिसाब से उसका आईपीओ का स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए. क्योंकि अभी तो आई थिंक ऐसा चल रहा है कि सारे एसएफपी में भरो, उसका सब्सक्रिप्शन भी 300-400 गुना हो रहा है. लक की तरह लग गया तो लग गया, पैसा डबल हो गया रातों रात, या नहीं चला. ये तो बहुत डेंजर का साइन है. ये तो जितनी जल्दी इस चीज़ से हमारा खुद का एसएमई वगैरह में मर्चेंट बैंकिंग में काम हो रहा है. कि ये जो चीज़ है ना, जब सब लोग को बहुत आसानी से पैसा दिखने लग जाए, बहुत कॉमन हो जाए, तो बहुत पुरानी सुनी हुई चीज़ है ये. इस स्पेस में उस हिसाब से बहुत वॉचफुल हो जाना चाहिए. अब बल्कि किसी का बड़ा पॉकेट है, किसी के साथ कर सकते हैं, बड़ी अच्छी कंपनी जो बहुत सेक्रेटरी कुछ एंकर की तरह काम कर सकते हो आप, जैसे एंकर इन्वेस्टर आप कर सकते हो, तो वो आप ट्राई कर सकते हो. किंतु ऐसे जो मास में जिस टाइप से हर आईपीओ आ रहे हैं, ऐसे में ये कहीं ना कहीं इसमें एक डीप करेक्शन आएगा. आशीष जी, अभी ये भी देखा जा रहा है कि दुनिया में काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स गोल्ड को इकट्ठा कर रही है, रिजर्व्स बढ़ा रही है. ये साइन को कैसे देखना चाहिए? पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि गवर्नमेंट गोल्ड वो खरीदे એટલે वॉर ने सिचुएशंस आवे. सो इज दैट अ साइन टू बी कॉशियस फॉर लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स या लॉट ऑफ मार्केट्स? और इन्वेस्टर्स को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये साइन को कैसे देखना चाहिए? एक्चुअली 2-3 चीज़ पहले क्लैरिफाई करना चाहिए कि व्हेन इधर जो भी आपका सवाल जो है वो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट है. राइट. सबके पास बहुत गोल्ड है, लेकिन वो लोगों को लगता है कि वो उनका इन्वेस्टमेंट है. वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग है. राइट. वो इन्वेस्ट आपको लगता है वो अगर इन्वेस्टमेंट हो, घर में जरा पूछ के देखो कि बेच सकता है कि नहीं बेच सकता. वो इन्वेस्टमेंट का बात नहीं हो रहा है, इधर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है. सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू सी सिचुएशन ऐसा ना, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट, मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि अमेरिका वगैरह में क्या है कि कर्जा इतना बढ़ गया है. देखिए जीडीपी जो है वो 1 साल का जीडीपी फ्लो नंबर है. राइट. वो जीडीपी में से टैक्स कलेक्शन होता है, जो भी होता है. अब इनका कर्जा इतना बढ़ गया है. और एक दूसरा चीज़, जितना भी दुनिया है ना, दुनिया में जितने भी रईस देश है और जो भी देश दुनिया के आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा भागीदारी जिनका है, वो सबके सब बुजुर्ग होते जा रहे हैं.
तो देखिए क्या होता है कि जब देश हो या इंसान हो, जब जवान है और जब उसका पूरा कार्यकाल उसके सामने है, अगर वो तब कर्जा बनाता है तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अपने कार्यकाल में वो कर्जा चुका देगा। लेकिन ये अमेरिका जैसा कंट्री फॉर एग्जांपल, या यूरोप, चाइना, जापान, लॉट ऑफ दीज कंट्रीज, उनका जो प्राइम है ना वो उनका पीछे है। अमेरिका थोड़ा अलग है क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज है, इनोवेटर है, लेकिन अमेरिका का भी कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जैसे बिटकॉइन वगैरह का बात हो रहा है, गोल्ड का बात हो रहा है, ये क्यों बात हो रहा है? क्योंकि भाई इनका कर्जा इतना ज़्यादा है और इनका प्रोडक्टिविटी, बेस्ट प्रोडक्टिविटी इनके पीछे है, और जितना पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग होते जा रहा है। अब आप ये पूरा का पूरा कर्जा ग्रो करके, सी द ओनली देयर आर टू वेज यू कैन डू, आइदर यू कैन इन्फ्लेट आउट ऑफ योर डेट और यू कैन ग्रो आउट ऑफ योर डेट। मतलब कर्जा है तो आप दो ही चीज कर सकते हैं, या तो आप इतना ग्रो करते हैं कि कितना भी कर्जा आप रीपे कर सकते हैं, या तो आप अपना करेंसी का ऐसा हाल कर दो, डेप्रिशिएट कर दो कि भाई कर्जा अपने आप ही कम हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि ये लोग बियॉन्ड द पॉइंट इतना ग्रो तो कर नहीं पाएंगे, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट, करेंसी का वैल्यू खराब होएगा। तो अल्टीमेटली गोल्ड और ये दूसरे जो ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं वो उसका टेलविंड या उसका बॉयंसी फ्रॉम टाइम टू टाइम रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि हिस्ट्री, वर्ल्ड, दुनिया का हिस्ट्री ऐसा है, क्या होता है कि भाई हम लोग सब 30, 40, 50, 60, 70 साल के, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि पिछले ऑन एन एवरेज हर 70-80 साल में दुनिया का जो पैसे का चलन है ना चेंज होता है। हम लोग का पूरा करियर निकल गया जहाँ पे आंख बंद करके किधर भी जाने का तो डॉलर। तो भाई 100 साल पहले ऐसा नहीं था, 200 साल पहले भी ऐसा नहीं था, 300 साल पहले भी ऐसा नहीं था। तो आपको किसने बोला कि आने वाले 100 साल में भी डॉलर ही रहेगा? नहीं ना, जरूरी नहीं है। प्राइस करेक्शंस ड्यू टू हाई वैल्यूएशन लग रहा है, या स्लो अर्निंग्स की वजह से, या टाइम करेक्शन ड्यू टू हाई लिक्विडिटी लग रहा है? दोनों में से एक भी नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट 3 साल में जो अर्निंग ग्रोथ है ना लास्ट 3 साल से कम रहेगी, राइट, क्योंकि वी हैव कम आउट फ्रॉम अ वेरी लो बेस। तो लास्ट 3 साल में या 4 साल में आप देखेंगे निफ्टी का EPS 483 का 988 हो गया, राइट। तो वी आर ऑलमोस्ट डबल आवर अर्निंग इन लास्ट 4 years। अब जो बेस काफ़ी बढ़ गया है तो डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ मॉडरेट होगी यहाँ से, तो दैट इज़ फॉर श्योर। इसलिए अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी जो है आगे करके कम करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बेस से अर्निंग मॉडरेट होगी फॉर श्योर। तो मुझे लगता है कि ये जो फेज में ना सेक्टोरल रोटेशन बहुत फास्ट होगा, राइट, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, जैसे सबने कहा मार्केट बहुत बढ़ गया है और पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है। तो ये जो फेज जो में अपन एंटर कर गए हैं ना, अब नाउ देयर विल बी लॉट ऑफ सेक्टोरल रोटेशन, राइट। तो बी रेडी फॉर इट, और ये बहुत स्विफ्ट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब मार्केट हेज फंड डोमिनेटेड हो गया है, तो मोमेंटम ड्रिवन इन्वेस्टिंग हो गई है, सेक्टर बहुत फास्ट चेंज हो जाते हैं। तो ये होगा, और जहाँ पर भी अब Q3 ऑनवर्ड, Q2 की भी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट मार्केट इग्नोर कर देगा, क्योंकि रेनी सीजन है, मानसून इज हैवी एंड ऑल दिस, बट Q3 ऑनवर्ड no any earning disappointment will be penalized very badly. We have to be ready for this, right? तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि already we have entered in a phase of sectoral rotation, और ये बहुत फास्ट रहेगा। As a fund manager I can tell you we will have a very tough time. मेरा फंड मैनेजमेंट मैनेज करने का स्टाइल बहुत अलग है। मेरा कोई I only work for investor। मैं खुद CIO था, मेरे अंडर बहुत सारे फंड मैनेजर्स थे, मैंने सबकी स्टाइल देखी है। क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना अभिमन्यु की तरह एक स्टॉक में घुस जाओ और बड़ा रिटर्न बना लो, परंतु जैसे अर्निंग डिसअपॉइंट होती है ना, इंडिया में आप स्टॉक बेच नहीं सकते,
क्योंकि बायर नहीं होते। मैंने कहा जैसे फंड्स बड़े होते हैं और सेक्टरल और जैसे अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट आती है ना, तो बड़े फंड्स बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म करते हैं, 5-5 साल निकल जाते हैं। तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला कि मेरे को डाइवर्सिफाई करने का है, मेरे को बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना है, वेट मैनेज करना है, ताकि मेरे को कंसिस्टेंटली बेंचमार्क बीट करने का है। मेरा कोई करियर नहीं है, आई एम हियर ओनली फॉर इन्वेस्टर। मेरी लाइफ एकदम क्लियर है, सॉर्टेड आउट है। मैं रिटेल इन्वेस्टर का फंड मैनेजर हूँ। मेरे को सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर, और रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो परफॉर्मेंस के बाद आता है। तो उसका ना, जैसे आशीष जी ने बताया कि उन्होंने बताया कि फंड का, इन्वेस्टर का रिटर्न फंड के रिटर्न से पुअर है, क्योंकि वो बाद में आता है। मैं ये चाहता हूँ कि उसको रोलिंग रिटर्न दूँ करके। ये मेरा ट्राई है। देखिए, मैं फेल भी हो सकता हूँ, परंतु मेरी ये कोशिश है, इसलिए मैं ना वेट मैनेज करता हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं 6 मारूं, मेरे को राहुल द्रविड़ की तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना है। दिस इज माय एम ऑफ माय लाइफ। इसी बेस पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा इस आंसर से कनेक्ट करके कि म्यूचुअल फंड तो सही है, एडवाइजर कितना ज़रूरी है? एक्चुअली मेरे को ना समझ में नहीं आता है कि पैसे के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में या शेयर के बारे में ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि मैं खुद ही कर लेगा। ऐसा कहाँ से ऐसा ख्याल क्यों आता है, मेरे को समझ नहीं कि क्या है। हर चीज़ के लिए लोग के पास सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन पैसा ऐसा चीज़ है, उसमें मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या चीज़ है कि लोगों को बोलने में मज़ा आता है कि मैं करता हूँ खुद। व्हाट इज़ द ईगो, आई डोंट अंडरस्टैंड। करेक्ट। और दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ। अपन बोलते हैं ना कि हेल्थ और वेल्थ, तो अगर आपका फिजिकल हेल्थ खराब होएगा, बुरा से बुरा क्या होएगा? आप बताओ मेरे को। फिजिकल हेल्थ आपका खराब होएगा तो आपके साथ बुरा से बुरा क्या होएगा? और आपका फाइनेंशियल हेल्थ खराब होएगा तो आपके साथ बुरा से बुरा क्या होएगा? पूरी फैमिली खराब। देखो क्या है, फिजिकल हेल्थ खराब होएगा तो आदमी छूट जाएगा। फाइनेंशियल हेल्थ खराब होएगा ना तो यू विल लीड अ पेनफुल लाइफ। हिंदी पिक्चर में ऐसा एक डायलॉग सुना था मैंने, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तो डायलॉग सुना है। तो क्या है कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोग अपना फाइनेंस के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं। मतलब ऐसा किधर से कॉन्फिडेंस आता है कि ये मैं ही कर लेगा। Okay, with this we end the session here. Thank you very much, our panelists. We'll start with dinner time. If you have any questions for them, तो अपने dinner time में questions ले सकते हैं. Thank you very much. તો બધાએ વસ્તુ નોટિસ કરી, આપણે कुछ નોટિસ किया? ધરતી પર જ્યારે કંઈ પણ અલૌકિક થાય ને ત્યારે નાસા ફોટો પાડે. આજે પણ નાસાએ ફોટો પાડ્યો હશે, કેમ કે 98,000 કરોડ 65,000 ટોટલ 1.5 કરોડનો માલ જે છે ને, 2.5 કરોડનો માલ આ જે કે ના પ્લેટફોર્મ પર આજે તમને જોવા મળી રહ્યો છે. સો ધીસ ઇઝ અ રેર ફેનોમેના આઉટ હિયર. સો થેન્ક યુ સો મચ. આજે હું પણ ઘણું બધું જાણી જઈશ અને મને એવું લાગી રહ્યું છે કે 2-3 વર્ષમાં હું કરોડપતિ થઈ જવાનું છું. એટલું બધું નોલેજ મને મળી ગયું છે. So I'll have ample of things to go back to Ahmedabad and flaunt. So thank you so much. It was a lovely and a different evening. Thank you guys. Dinner is open. You can have fun. Thank you so much. Special thanks to all our panelists out here.